میں کئی دن سے محسوس کر رہا تھا کہ کوئی نادیدہ وجود ہے جو ہر وقت میرے آس پاس رہتا ہے، خاص کر تنہائی میں چلتے ہوئے لگتا کہ کوئی میرے ساتھ چل رہا ہے، اور اکثر میرے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دیتی۔ مڑ کر دیکھتا تو کوئی نہ ہوتا، اور گھر سے باہر یہ احساس مزید قوی ہو جاتا، اور رات کے کسی پہر اچانک میری آنکھ کھل جاتی، کمرے سے باہر قدموں کی چاپ سنائی دیتی اور جیسے کوئی چل پھر رہا ہو۔ دروازہ کھول کر دیکھتا تو کوئی موجود نہ ہوتا، اور اس کے علاوہ ایک اور تبدیلی بھی میں نے محسوس کی۔ ہر وقت میرے ارد گرد گلاب کی مہک موجود رہتی۔ آفس میں، گھر میں اور راہ چلتے ہوئے مسلسل گلاب کی مسحور کن خوشبو میرے آس پاس رہا کرتی۔ رادہ ایک پر اسرار ناول، ایک ایسے خاندان کی داستان جو شیطانی مخلوق کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ اس وقت مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ باہر کیا کچھ ہو چکا ہے، اور سپاہی کی بات سن کر میں چونکا ضرور تھا۔ تیرے کرتوتوں کا چرچا سارے شہر میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کا فکرہ میرے ذہن میں گونجا، اور اس وقت میرا خیال تھا کہ وہ محض مجھے ڈرانے کی خاطر کہہ رہا ہے، اور یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ سب کچھ اتنا آسان نہیں جتنا میں سمجھ رہا تھا، اور سپاہی کو گئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، اور ابھی تک عمران نہ آیا، اور میں سبین کو تقریباً 12 بجے گھر لے کر گیا تھا، اور اس حساب سے اب شام 4 بجے کا وقت ہونا چاہیے تھا، اور مجھے خطرہ تھا اگر سپاہی بر وقت نہ گیا تو بینک میں چھٹی ہو جائے گی، اور پھر عمران کا ملنا ناممکن تھا۔ سپاہی کی بات کا مجھے اس لیے بھی یقین نہ تھا کہ اگر بات سارے شہر میں پھیل چکی تھی تو عمران ابھی تک کیوں بے خبر تھا، اور یہ تو ناممکن تھا کہ اسے معلوم ہوتا اور وہ نہ آتا، اور اس کے ساتھ ہی ایک لرزہ خیز خیال میرے ذہن میں آیا۔ کیا انکل بیگ اور آنٹی کو بھی معلوم ہو چکا ہوگا؟ اور یہ سوچ بھڑکتی چنگاری جیسی تھی۔ چونکہ ان کا گھر ہم سے زیادہ دور نہ تھا، اور ایسی بات تو جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے۔ کیسے کیسے مہربان اور شفیق لوگوں کا ساتھ مجھے میسر رہا تھا کہ مجھے ایک دن بھی اجنبیت کا احساس نہ ہوا، اور اگر بات ان کے علم میں آ گئی اور انہوں نے یہاں آ کر مجھے اس حالت میں دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے؟ اور سوچوں نے میرے حواس معطل کر دیے، اور میں دعا کر رہا تھا کسی طرح عمران آ جائے۔ اب میں رادہ کی عمل سے مایوس ہو چکا تھا، اور اسے آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی۔ فاصلے اس کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے، اور وہ پل بھر میں دنیا کے جس کونے میں پہنچ جاتی۔ تو کیا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ لیکن اسے کیا ضرورت تھی ایسی بات کہنے کی؟ اور اسے مجھ سے کیا خوف تھا اور میرے ساتھ جھوٹا وعدہ کرتی؟ اور کیا اسے کالی داس نے روک دیا تھا؟ اور کیا کالی داس سب پر حاوی ہو گیا، اور میں اپنے سوچوں میں اتنا گم تھا کہ عمران کو نہ دیکھ سکا جو شلاخوں کے پاس غمگین حالت میں کھڑا تھا۔ خان بھائی، اور میں نے چونک کر دیکھا، اور اس کے احساس کا اظہار اس کے پرخلوص چہرے سے ہو رہا تھا، اور مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے آہستہ سے کہا، خان بھائی، یہ سب کیا ہو گیا؟ اور میں تو سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے۔ زمین پھٹ جاتی اور میں اس میں سما جاتا، اگر میرے بس میں ہوتا تو کہاں اور میں شدت سے عمران کا منتظر تھا، اور جب وہ آیا تو میں شرم کے مارے نظر نہ اٹھا سکا، اور میری کیفیت کو وہ جان گیا تھا۔ خان بھائی، مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ حقیقت نہیں، اور اس میں ضرور کسی سازش کا ہاتھ ہے، لیکن باہر جو حالات ہیں ان کے دیکھتے ہوئے میں بہت فکر مند ہوں، اور مجھے جیسے ہی معلوم ہوا اور میں اسی وقت تھانے آ گیا تھا، لیکن ڈی ایس پی صاحب کی موجودگی میں مجھے اندر نہیں آنے دیا گیا، اور یہ تو تھانہ محرر میرا کلاس فیلو اور دوست ہے، اسی وجہ سے آپ سے ملاقات ممکن ہو سکی۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ عمران، تم تو جانتے ہو کہ میں کیسا انسان ہوں، اور کیا تم سوچ سکتے ہو کہ میں ایسی کبھی حرکت کر سکتا ہوں؟ اور میں نے جھوٹ بول کر اپنی صفائی پیش کی۔ خان صاحب، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور میں ابھی آتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ سامنے سے ہٹ گیا، اور جتنی شرمندگی مجھے ہو سکتی تھی اس کا اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت رہا تھا، اور مجھے اپنے ایک گناہ یاد آنے لگے، اور آخر میں رادہ کے حسن کو دیکھ کر پاگل اور اندھا نہ ہوا ہوتا تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ بسنتی نے کالی داس سے مل کر یہ سب کچھ کیا ہو، اور ہو سکتا ہے اسے رادہ کے ساتھ کوئی پرکاش ہو۔ مختلف سوچوں نے میرے دماغ کو گھیر رکھا تھا، اور کسی سوال کا جواب میرے پاس نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران دوبارہ نظر آیا، اور اس بار اس کے ساتھ سادہ لباس میں ایک شخص بھی تھا، جس نے کپڑوں کا ایک جوڑا ہاتھ میں تھاما ہوا تھا،
और जैसे किसी अंधे को आंखों की ख्वाहिश हो सकती है, और उसी तरह मुझे इस वक्त कपड़ों की ज़रूरत थी। सादा लिबास वाले ने कपड़े अंदर फेंक दिए। इन्हें पहन लो, और अगर कोई पूछे तो कहना कि यही हवालात के कमरे में पड़े थे। और इतना कहने के बाद वो दोनों सामने से हट गए। कपड़े मेरे ऊपर आकर गिरे और उनसे पसीने की बदबू आ रही थी, और मैंने जल्दी से कपड़े पहन लिए। थोड़ी देर बाद वही सादा लिबास वाला आया और उसके हाथ में जूस का डब्बा था। वो भी उसने कपड़ों की तरह अंदर फेंक दिया, और वो शायद दरवाज़ा खोलने पर कादर ना था। मैंने जल्दी से डब्बा खोलकर मुंह से लगा लिया, और ज़िंदगी में सैकड़ों बार मैंने कई किस्म के मशरूबात पिए होंगे, लेकिन इस वक्त जो जूस का डब्बा मेरे लिए आब हयात से कम ना था, और मेरे हवास कुछ बहाल हुए और इमरान एक बार फिर सामने आया। खान भाई, मामला बहुत बिगड़ चुका है और सबीन अस्पताल में है। डीएसपी साहब खुद उसका बयान लेने गए हैं, और उसने सब कुछ उन्हें बता दिया है। और मुझे हैरत है कि वो किसके इशारे पर यह सब कुछ कर रही है। और मैं जैसे ज़मीन में गड़ गया, और जिस हालत में इमरान ने मुझे हवालात के उस कमरे में देखा था, उसे 100% यकीन होना चाहिए था कि मैं मुजरम हूँ। लेकिन वो अल्लाह का बंदा मुझ पर अंधा एतमाद करता था, और अभी तक वो यही सोच रहा था कि यह सब कुछ मेरे खिलाफ एक साजिश है। डीएसपी बाकर हुसैन सबीन के वालिद का शागिर्द है, और उसने उन्हें यकीन दिलाया है कि वो आपको कैफरे करदार तक पहुंचा कर रहेगा। सबीन का मंगेतर फौज में मेजर है, और वो भी आ पहुंचा है, और उसने कसम खाई है कि आपको सारी ज़िंदगी जेल से नहीं निकलने देगा। और उसके अलावा ख़वातीन के तंजीम ने भी इस मामले को उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी सदर मैडम सतारा का तल्लुक अपोजिशन पार्टी से है, और इस किस्म की भी मौके को हाथ से जाने नहीं देती, और जिसमें उसे हुकूमत को बदनाम करने में मदद मिले। और उस्ताद होने के नाते सबीन के वालिद साहब की इस शोहरत शहर में बहुत इज्जत है। इलाके के सरकर्दा अफराद के बच्चे उनके पास तालीम हासिल कर चुके हैं। तलबा ने भी थोड़ी देर पहले जुलूस निकाला है, और उन्होंने टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। लोग बुरी तरह बफरे हुए हैं, और जगह जगह से लोगों की टोलियां जुलूस में शामिल हो रही हैं। और मैडम सितारा के उकसाने पर ख़वातीन मुश्तल होकर घरों से बाहर निकल आई हैं। इमरान बता रहा था, और मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरी रिहाई की सारी राहें मसदूद हो चुकी हैं। खान भाई, और मैं सब कुछ खुदा न ख्वास्ता आपको इसलिए नहीं बता रहा कि मैं आपको मुजरम समझता हूँ, बल्कि मेरा मकसद आपको हालात की संगीनी से आगाह करना है। आप फिक्र न करें, मुझसे जो कुछ हो सका मैं ज़रूर करूँगा। और उसने मुझे तसल्ली दी, लेकिन उसका लहजा एतमाद से खाली था, और इतना कहकर वो चला गया। मैं जानता था कि महज तिफल तसल्ली है, और मेरी बदनसीबी का दौर शुरू हो चुका है। मैं सर झुकाए बैठा इन हालात पर गौर कर रहा था जो सरासर मेरे खिलाफ थे, और मायूसी बढ़ गई। जब इतने सारे लोग मेरे खिलाफ थे तो अकेला इमरान क्या कर सकता था। और इस वक्त मुझे ये भी ख्याल आया कि फ़ोटोग्राफ़र का ये रवैया राधा की पुरअसरार कुव्वत का करिश्मा होगा, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी इस बात की नफ़ी कर रही थी। और फ़ोटोग्राफ़र के रवैये की वजह कुछ भी हो, लेकिन मेरे सर से वक्ती तौर पर वह मुसीबत टल गई थी, और बकौले इमरान मेरे खिलाफ पर्चा कट चुका था, जिसे सबीन के बयान ने और मौसर बना दिया। उसने खुलकर मेरे खिलाफ बयान दिया था, लेकिन वो ये ना बता सकी कि वह मेरे साथ घर क्यों गई थी। इमरान को ये मालूमात मुहर्रर से हासिल हुई, और अभी तक 1-2 सिपाहियों के अलावा कोई उस तरफ से ना गुजरा था। इमरान से मिलने वाली मालूमात के बाद सही महीनों में मुझे मामले की संगीनी का एहसास हुआ, और मेरे हाथ पर खराश भी आती तो साइमा तड़प कर रह जाती। और अब मेरा जिस्म लहू लहू था, लेकिन हमदर्दी के 2 बोल कहने वाला भी कोई न था। लेकिन मैं तो इससे भी बदतर सलूक का मुस्तहिक था, और बेबसो बेयारो मददगार। सभी ने कितनी मिन्नतें की थी, लेकिन मेरे कान पर जूं न रेंगी थी। और अब मेरी फरियाद कौन सुनता। अब तो शायद सारी ज़िंदगी मुझे जेल में गुजारना थी, और सब कुछ ख़त्म हो गया था। शाम का मलजगा अंधेरा अब गहरी तारीकी में तब्दील हो रहा था, और इस हालत में मैं अपने रब के हजूर झुक भी न सकता। जनाबत की हालत में कोई दुआ भी नहीं मांग सकता, और काश कि मुझे गुस्ल की सहूलत मुयसर आ जाती तो मैं सर सजदे में रख देता। और बदकिस्मत और बदबख्त फारूक खान सवाए आहें भरने के कुछ और ना कर सकता था। मैं सर झुकाए बैठा था, और कमरे में अच्छा खासा अंधेरा हो गया, और बैठे बैठे मेरे कमरी दोहरी हो गई थी, और मैं वहीं फर्श पर लेट गया। और अचानक एक मनहूस आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। ये आवाज़ क्या थी? शीशा था पिघला हुआ था। बहुत निराश दिखाई दे रहा है बालक। और मैं बुरी तरह से उछला जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो,
اور ساتھ ہی کمرے میں مدھم روشنی پھیل گئی اور جس کا مخرج حسب معمول نظر نہ آ رہا تھا، اور تیزی سے اٹھ کر بیٹھنے سے میرے زخموں سے ٹیس اٹھنے لگی اور بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکل گئی اور جسے میں نے بمشکل ہونٹوں میں دبایا۔ کالی داس مجھ سے کچھ فاصلے پر دیوار سے ٹیک لگائے بڑے اطمینان سے بیٹھا تھا، اور اس وقت اس کے نحیف جسم پر ایک دھوتی تھی، اور جب وہ لوگوں کو لے کر میرے بیڈ روم میں آیا تھا تو اس نے مقامی لوگوں کی طرح دھوتی کرتا پہن رکھا تھا اور لمبے سفید بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ ایسا حلیہ ہمارے ہاں اکثر درویش قسم کے لوگ اپناتے ہیں، لیکن وہ اس کا بہروپ تھا۔ وہ تو شیطان صفت آدمی تھا، بلکہ اسے آدمی کہنا آدمیت کی توہین تھی۔ اور تم کیا ہو؟ اور زمین کی بنامت سے میرا سر جھک گیا۔ ابھی تیری پریم کا آقا تجھے اس کشت سے بچا کر لے جائے گی۔ اور اس نے میرا مذاق اڑایا اور میری رگوں میں خون کی بجائے لاوا دوڑنے لگا، اور زخمی جسم لے کر میں تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ چاہتا تھا کہ زمین کو اس کے گندے وجود سے پاک کر دوں، اور وہ بڑے اطمینان سے مجھے اپنی طرف بڑھتے دیکھتا رہا، اور آج اس نے میرے جسم کو بے حس و حرکت نہ کیا تھا، اور میں تیزی سے اس پر جھپٹا اور قریب تھا کہ اس بوڑھے کو ڈھانچے کا گلا دبا دیتا، اور کسی نے مجھے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ زخموں سے چور جسم جیسے ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ گیا تھا، اور منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی، اور کمرہ سادھو کے خوفناک کہکوں سے گونج اٹھا، اور میں چاروں شانے چت پڑا تھا۔ تو نے پچھلی بار کہا تھا کہ یدی میں تمہارے شریر کو اپنی شکتی سے نہ باندھتا تو تم مجھے نشٹ کر دیتا، اور اسی کارن اس بار میں نے تیرے شریر کو نہ باندھا کہ تو اپنی من کی حسرت نکال لے۔ آگے بڑھ اور میرا کریا کرم کر دے، اور کس بات کی دیر ہے؟ اور اس نے میری حالت دیکھتے ہوئے میرا مذاق اڑایا۔ میں بھی تو دیکھوں کہ تو کتنا بلوان ہے۔ اور اس کی ہرزہ سرائی جاری رہی، اور میں ہمت کر کے دوبارہ اٹھا، اور اس بار میں محتاط انداز میں اس کی طرف بڑھا۔ وہ میں نے خیز نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، اور جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا اس کے ہونٹ دائرے کی صورت میں سکڑ گئے، اور میں بجلی کسی تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا، اور اس کے منہ سے نکلا ہوا تھوک مجھ سے 2 انچ کے فاصلے سے گزر کر فرش پر جا پڑا۔ اس کے گندے تھوک کی اذیت میں ابھی بھولا نہیں تھا، اور میرے اور اس کے درمیان 4-5 قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ میں ہوا میں اچھلا اور اس بار چھلانگ لگا دی، لیکن کسی نادیدہ ہاتھ نے مجھے ہوا میں معلق کر دیا، اور چھت کے قریب جا کر میں سر کے بل گرنے لگا، اور زمین تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھی، اور اس عالم میں اگر میں زمین پر گرتا تو میرا سر پاش پاش ہو جاتا۔ لیکن اب جینے کی خواہش کس کو تھی؟ جس قدر ذلت میں اٹھا چکا تھا اس کے بعد وہ خود بھی جینا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن موت بڑی ظالم چیز ہے، اور انسان زندگی سے جس قدر بھی تنگ ہو مرنا نہیں چاہتا۔ قریب تھا کہ زمین سے ٹکرا کر ہمیشہ کی نیند سو جاتا، اور مجھے جیسے محسوس ہوا میرا پاؤں کسی کی گرفت میں آ گیا ہے، اور خوفناک جھٹکے نے میرے اوسان خطا کر دیے، اور درد کی شدید لہر نے احساس دلایا جیسے ٹانگ کو کولے کے جوڑ سے نکل گیا ہو، اور جیسے ہی میرے حواس بحال ہوئے تو میں نے دیکھا میں بالکل کالی داس کے اوپر معلق تھا، اور میرا ہاتھ اس کے سر سے 1-2 انچ کے فاصلے پر ہوا میں لہرا رہے تھے، اور میں چاہتا تھا کہ اس کا گلا دبوچ لوں تاکہ اس کے گندے جسم سے بدرو پرواز کر جائے، اور اس کے مکروہ ہونٹوں پر موجود طنزیہ مسکراہٹ نے مجھے مزید مشتعل کر دیا، اور کاش میں ابھی پر اسرار قوتوں کا باہر ہوتا تو اس خبیث کو ابھی مزہ چکھا دیتا۔ کیوں بالک، اب کیا وچار ہیں؟ اور یدی اب بھی تم میرا کہا مان لے تو میں تجھے क्षमा کر سکتا ہوں۔ اور اس بار اس کا لہجہ بدلا ہوا تھا، اور پھر چھت کی طرف دیکھ کر اس نے اجنبی زبان میں کچھ کہا، اور میں آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا، اور میری دائیں ٹانگ کسی نادیدہ گرفت میں تھی۔ کسی نے مجھے آرام سے نیچے اتار کر پشت کے بل لٹا دیا۔ اٹھ کر بیٹھ جا، اور خالد کی ارداس کی آواز آئی، اور میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابھی سمے نہیں گیا ہے، اور مورکھ نہ بن، اور میری آگیا کا پالن کر کے تو ایک بار پھر عزت سے سنسار میں رہ سکتا ہے۔ اور میں اس کی بات سن کر چونک گیا، اور وہ گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس وقت میری سب سے بڑی خواہش یہی تھی کہ میں ایک بار پھر معاشرے میں عزت کی زندگی جینا شروع کر دوں، اور میرے بارے میں اپنے وچار ٹھیک کر۔ میں اتنا برا نہیں، اور متروں کا متر ہوں، پرنتو بیریوں کے سنگ تو کس کوئی منش اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ اور تیری پریم کا اور تو نے میرے سنگ کیا کیا تھا یاد ہے؟ اور کیا یہ اس خبیث کی کوئی نئی چال تھی؟ اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ تیرے وچار غلط ہیں، اور میں نے کہا نا کہ میں تیری سہایتا کر سکتا ہوں، پرنتو تجھے میری آگیا کا پالن کرنا ہوگا۔ اور اس نے ایک بار پھر مجھے یقین دلایا۔ تو کیا چاہتا ہے؟ اور میں نے کچھ سوچ کر پوچھا، اور اس وقت اگر خبیث کی بات مان کر میرا چھٹکارا ہو سکتا تھا تو دانش مندی اسی میں تھی، اور اس کی بات مان لی جائے۔
मैं काली माता की आज्ञा के अनुसार राधा को हासिल करना चाहता हूँ। और उसने अपना मुतालबा दोहराया। राधा को हासिल करना चाहता है और याद है कि उसने किस तरह तुझे ज़मीन चाटने पर मजबूर कर दिया था और ना चाहते हुए भी मेरा लहजा तंजिया हो गया और यर्क बारगी उसकी आंखें सुर्ख हो गईं। ऐसी बातें ना कर कि एक बार फिर तुझे कष्ट भोगना पड़े। लेकिन इस सिलसिले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और इसलिए मैंने जल्दी से पूछा, जैसा मैं कहूँ करता जा और फिर देख, संसार को मैं तेरे वास्ते स्वर्ग बना दूंगा और तेरी हर मनोकामना पूरी होगी। तू जिस इच्छा का विचार अपने मन में लाएगा अवश्य पूरी होगी। और वह मुझे लालच दे रहा था और मैं अभी तक तुम्हारी बात नहीं समझा और उसकी बातों से मैं बुरी तरह उलझ गया था। राधा का जाप होने में अभी कुछ समय बाकी है और यदि मुझे वचन दे कि समय आने पर मेरी आज्ञा का पालन करेगा तो मैं तेरी सहायता करने को तैयार हूँ। और उसने बड़े इत्मीनान से कहा, खुलकर बात करो कि तुम क्या चाहते हो। और कुछ देर में मुझे घूरता रहा और फिर आहिस्ता से बोला, राधा तुझसे प्रेम करती है और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों के बीच कैसा संबंध है और तुझे केवल इतना करना होगा कि जब वो तुझसे मिलने आए तो मुझे खबर कर दे। और इस बार उसने वजाहत की और मुझे राधा की बात याद आ गई। संसार के सारे पिंडत पुजारी मुझे प्राप्त करने के कारण धूनी रमाए बैठे हैं और मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि मनहूस क्या चाहता है। और इससे कबल उसका चेला अमर कुमार भी इसी किस्म का मुतालबा कर चुका था। लेकिन उसने शर्त रखी थी कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। और मेरे चेहरे पर कशमशक देखकर वो बोला, तू अपनी पत्नी को छोड़े बिना भी मेरी सहायता कर सकता है। और अमर कुमार मेरा चेला था और उसने अभी इतनी शक्ति प्राप्त ना की थी और उसी कारण उसने तुझसे तेरी पत्नी छोड़ने को कहा था। परंतु मैं ऐसी कोई बात ना कहूँगा और मेरी इच्छा तो केवल ये है कि तू मन से मेरी बात मान ले। और परंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखना और यदि तूने मेरे संग छल कपट किया तो जानता है कि कालिदास किस शक्ति का नाम है। और कुछ देर वो मेरे चेहरे के तासरात का जायजा लेता रहा और फिर कहने लगा, मैं ये भी जानता हूँ कि राधा के आने के बाद तू एक बार फिर मेरे आड़े आने की आवश्यकता करेगा, परंतु इस बार वो मुझे कष्ट देने में सफल ना हो पाएगी। लेकिन उस दिन तो ऐसा ही हुआ था और मैं तुझे बता चुका हूँ कि उस दिन कुछ और शक्तियाँ भी मेरी तेरी सहायता कर रही थी और उसी कारण वह मुक्त हो गई थी। नहीं तो राधा कालिदास की शक्ति को जानती है। और उसने गर्दन अकड़ कर कहा, अगर मैं ऐसा करने का वादा कर भी लूँ तो तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? और ये मामला तो इतना उलझ चुका है कि अब तुम चाहो भी तो नहीं सुलझा सकते। मैं मायूस हो चुका था। तुमने अभी कालिदास की शक्ति देखी ही कहाँ है बालक? और मुझे वचन दे और फिर देख के मैं क्या करता हूँ। और उसके लहजे से अंदाजा हो रहा था कि वो सच बोल रहा है। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? और सारे शहर में मेरे खिलाफ हंगामे हो रहे हैं। पर्चा कट चुका है और सभी ने अपना बयान भी तो दे दिया है। तू ये बातें छोड़ और केवल इस बात पर ध्यान दे कि जो मैं कह रहा हूँ तुझे बचाना मेरा काम है। परंतु ध्यान रहे, यदि तू वचन देकर फिर गया तो तुझे मेरे श्राप से बचाने वाला इस संसार में कोई ना होगा। मैं जानता हूं कि इस समय मन में राधा के वास्ते क्रोध है, परंतु उसके आने के बाद हो सकता है कि तेरे मन में उसका प्रेम फिर जाग जाए और तू अपने वचन से फिर जाए। यदि ऐसा ध्यान भी तू अपने मन में लाया तो इतना याद रखना कि कालिदास तुझे कभी क्षमा ना करेगा। और ये ऐसा मौका ना था कि मैं उसकी बातों का बुरा मान जाता और मैं उसकी धमकी को जहर के घूंट की तरह पी गया और जबत से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था। मेरी कैफियत देखकर वह नरमी से बोला, कालिदास का मित्र बन के देख और कालिदास तेरे चरणों में सुंदर कन्याओं का ढेर लगा देगा और राधा से भी सुंदर कन्याएं। और यदि तुझे मेरी बात पर विश्वास ना हो तो मैं तुझे अपनी अभी चमत्कार दिखा सकता हूँ। और मुझे अपनी तरफ सवाल की नज़रों से देखते पाकर वो मैनीखेत अंदाज में मुस्कुराया। मैं जानता हूँ कि तू केवल मेरे कहे पर विश्वास न करेगा। अब देख के कालिदास क्या कर सकता है। वो मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगा और उसके होंठ हिले लेकिन आवाज़ ना निकली। और दूसरे ही लम्हे हवालात के कमरे में बसंती ज़ाहिर हो गई। वही बसंती जिसकी बात मानकर मैं साल को पहुंचा था। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो इस कदर हसीन थी कि उस पर से नज़रें हटाना मुश्किल हो जाता। और मेरी उस हालत की जिम्मेदार बसंती थी। और फिर उसे भी देखकर एक लम्हे के लिए मैं डोल गया। और उसने नहायत मुक्त से लिबास पहन रखा था और जिससे उसका कुंदन बदन दमक रहा था। प्रणाम महाराज। उसने कालिदास को हाथ बांधकर सलाम किया और उसके बाद मेरी जन्म मुड़ी और हाथ जोड़ दिए और उसके होंठों पर बड़ी ही शोक मुस्कुराहट थी।
हसीन आंखों में शरारत नाच रही थी और अचानक मुझे अपनी तजलील याद आ गई, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बसंती ही थी। और मेरा चेहरा तप गया, रगों में खून की गर्दिश तेज हो गई और मेरा ख्याल दुरुस्त था कि कालिदास की साजिश में बसंती पूरी तरह शरीक थी। मुझ अभागन पर किस कारण खफा हो महाराज? और मैंने तो केवल महाराज कालिदास की आज्ञा का पालन किया है। और उसकी मधुर आवाज़ आई और मेरे चेहरे से दिल्ली कफियात अयां थी। बसंती, तुमने मुझे धोखा दिया है और राधा तुझे कभी माफ़ ना करेगी। और मेरा लहजा खुद ब खुद सर्द हो गया। अब छोड़ो भी पुराने झगड़े फारूक खान, हम मित्र बन चुके हैं और मित्रों के वास्ते मन में क्रोध रखना पाप है। और कालिदास के होंठों पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी, लेकिन मुझे उस खबीस की किसी बात पर एतबार ना रहा था। और यदि तुम्हारा मन साफ नहीं है तो मैं जाता हूँ, और उसके बाद तेरे संग जो होगा वो तू भुगत ना पाएगा। और एक बार फिर उसने मुझे धमकाया और दिल तो चाह रहा था कि इन दोनों को जान से मार दूं, लेकिन ये मेरे इख्तियार में ना था। ठीक है, वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन तुम भी यह वादा करो कि मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओगे। और उसके अलावा ये भी बात वाज़ेह होनी चाहिए कि सब कुछ किस तरह मुमकिन होगा और राधा के सिलसिले में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। बिल आखिर मैंने कह दिया, तू बड़ा भाग्यशाली है, कालिदास ने तुझे अपना मित्र मान लिया है। और अब देखना कि कालिदास तुझे इस कष्ट से कैसे निकालता है। और उसके लहजे में तकब्बर बोल रहा था। रही बात राधा की, और वह कुछ देर पूर्ण ख्याल नजरों से मेरी तरफ देखता रहा और फिर कहने लगा, और जब राधा जाप से वापस आकर तुझसे शरीर का संबंध जोड़ने आए तो तू केवल मुझे खबर कर देना। और उसने बड़े आराम से मुझे समझाया, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊंगा? मैंने वजाहत चाही। समय आने पर तुझे सब कुछ समझा दूंगा, और परंतु इस समय केवल इतना जान ले कि जब राधा तुझसे शरीर का संबंध जोड़ने को कहे तो तू कहना आज नहीं कल, और उसके बाद तू मेरी आज्ञा का पालन करते हुए मुझे खबर कर देना, और बाकी मैं खुद देख लूंगा। उसने अपना मुद्दा वादे कर दिया, और उसकी बात से मैं ये समझा कि जब मैं राधा से मिलते हैं तो वो कोई ऐसा बंदोबस्त कर लेती है जिससे कालिदास को हमारे मिलने की खबर नहीं हो सकती। ठीक है कालिदास, अब मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। और उसके मकरू होंठों पर फातहाना मुस्कुराहट रक्स करने लगी। और इस दौरान में बसंती बिल्कुल खामोश खड़ी रही, और मेरी बात खत्म होने पर उसने कालिदास से कहा, महाराज मुझे जाने की आज्ञा दो, मेरे भोजन का समय हो रहा है। हाँ तू जा, और जब तेरी जरूरत होगी मैं बुला लूंगा। और कालिदास ने लगावट भरी नजरों से बसंती को देखा। महाराज अपना वचन याद रखना, और यदि तुम भूल गए तो बसंती भी अपने वचन से फिर जाएगी। और दूसरे ही लम्हे वो नजरों से उज्जल हो गई। और उसके जाने के बाद कालिदास मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। तुझे किस बात की चिंता है? और मैंने जो कह दिया है कि अब हम मित्र हैं, और कालिदास के मित्र को कष्ट भोगना पड़े और ये संभव नामुमकिन है। और जानता हूँ इतनी जल्दी तू मुझ पर विश्वास न करेगा। ठहर, और तुझे एक और चमत्कार दिखाता हूँ, और परंतु ध्यान रहे कि किसी के सामने मुझे आवाज़ ना देना। और मैं भी इसकी बात का मतलब पूछने ही वाला था कि बाहर से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी, और मैंने घबराकर कालिदास की तरफ देखा, जो बड़ी इत्मीनान से अपनी जगह नीमदराज था। और कमरे में यकदम अंधेरा छा गया। कमरे में अंधेरा क्यों है? दरवाजे के बाहर से आवाज़ आई, सर जी शायद बल्ब फ्यूज हो गया है। और उसके बाद ताला खुलने की आवाज़ आई। जा भागकर इमरजेंसी लाइट ले आ, और पहले वाले ने कहा, और तेज कदमों से किसी के जाने की आवाज़ आई। अंधेरा इतना भी गहरा ना था कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता, और दरवाजे के सामने एक दराज कद शख्स का हेला दिखाई दिया। और थोड़ी देर बाद वही आदमी हाथ में जलती हुई इमरजेंसी लाइट पकड़े आ गया। उसने दरवाज़ा खोला और दोनों अंदर आ गए। एक ने वर्दी पहनी हुई थी, और जबकि इमरजेंसी लाइट पकड़े हुए आदमी सादा लिबास में था। सर जी जरा इसे पकड़े, मैं बल्ब लगा दूं। और सादा लिबास वाले वर्दी वाले से कहा, और फिर बल्ब लगाकर लाइट ऑन कर दी, और कमरा रोशनी से भर गया। वर्दी में मलबूस शख्स के कंधे पर लगे स्टार उसे इंस्पेक्टर ज़ाहिर कर रहे थे, और जबकि दूसरा शायद सिपाही था। और इंस्पेक्टर ने मुझे गौर से देखा। खड़े हो जाओ। और मैं उठकर खड़ा हो गया, और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने कालिदास की तरफ देखा, वो बड़े इत्मीनान से नीम दराज था। मुझे उसकी हदायत याद थी कि किसी के सामने मैं उसे मुखातब ना करूं, और इंस्पेक्टर मेरा सर से पांव तक जायजा ले रहा था। मुझे यकीन है कि तुम बेगुनाह हो, और मैं तो शक्ल से मुजरम को पहचान लेता हूँ। और फिर सिपाही की तरफ मुड़ा, इसे कुछ खाने को भी दिया है या नहीं? साजी साहब जी का आर्डर था कि इसे कुछ खाने नहीं देना।
वो तो पागल है और उसकी नज़र में हर शख्स मुजरम है। जाओ इसके लिए कुछ खाने पीने को ले आओ। और उसने साहब जी को बुरा भला कहते हुए सिपाही को हुक्म दिया और वो फौरन बाहर चला गया। मेरा नाम इंस्पेक्टर आदिल है और मेरी पुलिस सर्विस को 25 साल हो गए हैं। मैं शक्ल ही से मुजरम को पहचान लेता हूं और मैं यकीन से कह सकता हूं कि तुम मुजरम नहीं। लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है कि सब लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों हैं, और क्या तुम मुझे बताओगे कि असल मामला क्या है? और उसने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में सवाल किया। इससे कह कि तुझे किसी बात की जानकारी नहीं, और जी अच्छा ना होने के कारण तू घर पर था और कुछ मिनश आए और उन्होंने तेरे घर में तोड़ फोड़ की और तुझे मार मार कर तेरी दशा बना दी, और उसके बाद तुझे कुछ खबर ना रही, और जब होश आया तो यहाँ हवालात के कमरे में पड़ा था। कालीदास ने कहा, और मैंने चौंक कर पहले कालीदास और फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखा, और वो कालीदास के वजूद से बेखबर मुझे देख रहा था। ये मुझे नहीं देख सकता। और कालीदास मेरी परेशानी भांप कर बोला, और मैंने उसकी हदायत के मुताबिक थानेदार को वही कहानी सुना दी। कौन लोग थे और उन्हें तुमसे क्या दुश्मनी थी? और मैंने फिर कालीदास की तरफ देखा। कुछ अपनी बुद्धि से काम ले ले, उसकी बेजार आवाज आई। और ये तुम बार बार पीछे क्यों देखने लगते हो? और थानेदार ने नरमी से पूछा, और वो एक सुलझा हुआ शख्स था। मेरे घर के सामने रिटायर्ड डीएसपी उमर हयात रहता है और वो उस घर को खरीदना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर साहब जो इस मकान के मालिक हैं उन्होंने मुझे किराए पर दे दिया, और इस बात का उसे बहुत रंज है। उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा देर तक टिकने नहीं दूंगा, और मेरी जो समझ में आया मैंने कह दिया। अच्छा ये बात है। और जब भी वो बढ़ बढ़ कर बोल रहा था। और सामने वाली कोठी में साजिद नामी एक शख्स रहता है, वो उमर हयात का गहरा दोस्त है, और उसने भी कई बार मुझे दबी दबी जुबान में कहा था कि मैं ये घर छोड़ दूं नहीं तो पछताऊंगा, और मैंने अपनी बात में इजाफा किया। लाशौरी तौर पर मैंने साजिद से बदला लिया था, क्योंकि मुझे मारने वालों में वो पेश था। ठीक है, मैं देख लूंगा, और तू बिल्कुल फिक्र ना करो। और अभी करमदीन खाना लाता है और वो खा लो, और चार पाई और बिस्तर बिछवा देता हूँ, और आराम से सो जाओ। किसी बात की फिक्र ना करना, और सुबह अदालत से जमानत हो जाएगी। अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुम्हें अभी घर जाने की इजाज़त दे देता, लेकिन तुम्हारे खिलाफ पर्चा कट चुका है, और तुम्हें सुबह मैं खुद अदालत में लेकर जाऊंगा, और किसी बात की फिक्र ना करना। जिस दरिंदगी से उन्होंने तुम्हें मारा है उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा, और इसी वजह से मैंने तुम्हारी मरहम पट्टी नहीं कराई कि जज के सामने मैं तुम्हें इसी हालत में पेश करना चाहता हूँ। और उसने मुलायमत से मुझे समझाया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ और तुम किसी बात की फिक्र ना करना, और तुम्हारा दफा भरपूर तरीके से करूँगा। और इतना कहकर वो बाहर निकल गया, लेकिन इस बार उसने दरवाज़ा बंद करने की जहमत भी नहीं की, और अभी वो गया ही था कि सिपाही करमदीन मेरे लिए खाना ले आया। खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू ने भूख का एहसास दिला दिया, और सुबह से अब तक मैंने सवाए एक जूस के डब्बे के कुछ खाया पिया ना था। साहब जी, पेट भरकर खाओ और किसी बात की फिक्र ना करो, और हमारा साहब बहुत अच्छा आदमी है, वो तुम्हारी मदद करेगा। उसने खाना मेरे सामने रखते हुए कहा और बाहर निकल गया। जाते हुए उसने दरवाज़ा बंद तो कर दिया, लेकिन उसमें ताला नहीं लगाया था। भोजन खा लो तो फिर बातें करेंगे। और कालीदास की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया, और खाना देखकर मैं उसकी मौजूदगी को फरामोश कर बैठा था। आ जाओ तुम भी खा लो, और मैंने उसे दावत दी। और उसमें वक़्त इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करने की खातिर उसकी हर बात मानने के लिए तैयार था, और उसका एतमाद हासिल करना चाहता था। उसने गहरी नज़रों से मुझे देखा। तुम खाओ और मैं भोजन करके आया हूँ। और जब मैं खाने से फारग हुआ तो उसने कहा, देख महाशय, और कैसे एक पल में मैंने काया पलट दी, और यही मिनश आज की रीना तुम्हारी हड्डियों से गोदा निकालने वाला था, और परंतु अब कैसे तुम्हारा दास बना खड़ा है। और उसने बड़े फख्र से कहा, कालीदास, मैं तुमसे अपने पिछले रवैये की माजरत चाहता हूँ, और दरअसल राधा की मोहब्बत में मैं अंधा हो गया था। अगर कालीदास मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलवा देता तो उसका बहुत बड़ा एहसान होता, और इस वक्त उसकी जिस कदर हमदर्दी में हासिल कर सकता था मेरे लिए बेहतर था। अब छोड़ो भी पुरानी बातें, और जब हम मित्र बन चुके हैं तो काहे की चिंता, उसने बेपरवाही से कहा। और तूने जो कथा उस मूर्ख को सुनाई है, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है, और आज की रीना जो कष्ट तुझे भोगना पड़ेगा उसके लिए मुझे क्षमा करना। कल सारी कठिनाइयों से तेरी जान छूट जाएगी। और उसने मादरत भरे लहजे में कहा, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए कि मैंने राधा के साथ मिलकर तुम्हें बहुत दुख दिया है। हाँ, एक और बात भी मैं तुमसे कहना चाहूँगा, और जानता हूँ कि तू क्या कहना चाहता है। खेडू चोहड़े और सपना की हत्या को मैं बोल नहीं पाया, परंतु वो राधा का अपराध है, तू निर्दोष है। और उसने मेरी बात काट कर कहा, और वो भी राधा की तरह दिल की बात जान लेता था।
और केवल इतना जान ले कि यदि राधा के आने पर तूने मेरे संग छल कपट किया तो उसकी अधूरी बात में धमकी पोशीदा थी। और क्या तुम अब भी ये समझते हो कि मैं राधा का साथ दूंगा, और जिसकी वजह से मैं आज इस हालत में हवालात में पड़ा हूँ, और ये सब कुछ उस बदबख्त की वजह से तो हुआ है, वरना मैं तो एक सीधी सादी जिंदगी बसर करने वाला इंसान हूँ। ना राधा मुझे मिलती और ना ये दिन देखना पड़ते, और मैंने उसका एतमाद हासिल करने की खातिर राधा को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और बात थी भी सच, और इन हालात की जिम्मेदार राधा ही थी। तू बहुत बुद्धिमान है, और यदि तू सतीसा कह रहा है और तो सुन, अब कालिदास की शक्ति तुझे इन कठिनाइयों से यूं निकाल कर ले जाएगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और कालिदास का मित्र बनकर तू घाटे में नहीं रहेगा। और राधा तो कुछ भी नहीं, ऐसी ऐसी सुंदर कन्याएं तेरे चरणों में बिठा दूंगा कि तू आकाश के अप्सराओं को भी भूल जाएगा। और उसने मुझे लालच दिया। ठीक है कालिदास, अगर तुमने अपना वादा पूरा किया तो तुम मुझे हमेशा अपना दोस्त पाओगे। और मैंने उसे यकीन दिला दिया, और दिल में उसी बात को दोहराने लगा जो कुछ देर मेरी आंखों में देखता रहा। धन्यवाद खान साहब, तुम एक घर से मंशूर जो कुछ तुम्हारे मन में है मैं वो जानता हूँ, और अब तो किसी बात की चिंता न कर, और देख के कालिदास क्या करता है। और तुझे अभी कालिदास की शक्ति से जानकारी नहीं, और केवल आज की रहना उस कोठरी में बिता ले और फिर सब ठीक हो जाएगा। उसने मुझे तसल्ली दी, और मैंने मुंह में कुछ ना कहा, बस सर हिलाकर उसकी बात की तायीद कर दी। और थोड़ी देर बाद सिपाही करमदीन चारपाई और बिस्तर ले आया, और उसके बाद जाने के बाद कालिदास बोला, अब मुझे आज्ञा दो, और अभी जाकर बहुत कुछ करना है, और परंतु तू चिंता ना करना, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया, और अचानक वो मेरी नज़रों से ओझल हो गया। राधा ने मुझे बताया था कि कालिदास जबरदस्त पुरस्कारवतों का बालक है, और उसके लिए नज़रों से ओझल होना या हजारों कोस दूर पहुंच जाना कोई मुश्किल बात नहीं। मेरी चोटों में बहुत दर्द हो रहा था, और कमबख्तों ने बुरी तरह मेरी धुनाई की थी। और क्या कालिदास वाकई मेरी मदद करेगा? लेकिन इस वक्त उस पर एतबार करने के सिवा कोई चारा न था। इमरान दोबारा नहीं आया, और मैं दुखते जिस्म के साथ लेट गया, और सारे वाक़यात एक बार फिर मेरे जहन में ताज़ा हो गए। मुझे खुद से शर्म आ रही थी, और जो कुछ मैंने उस मजबूर और बेबस लड़की के साथ किया था, और उसकी सज़ा तो यही थी कि मुझे फांसी पर लटका दिया जाता। लेकिन मैं खुद गर्द हो गया था, और मेरे सामने साइमा और बच्चों के चेहरे आ गए, और मुझे अपनी सज़ा की इतनी फिक्र ना थी, और जो कुछ मैंने किया था मैं वाकई सज़ा का हकदार था। लेकिन साइमा और बच्चे, उनका क्या कसूर था? और अगर मैं जेल में चला जाता तो उनका परेशान हाल कौन होता? और मैं उन्हीं सोचों में गर्क था कि कमरे में एक बार फिर अंधेरा छा गया, और शायद बल्ब फिर फ्यूज हो गया था, और अचानक मेरे नथनों से खुशबू का झोंका टकराया, और कमरे में किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। राधा मेरे जहन में फौरन ख्याल आया, और मैं उठकर बैठ गया, और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ देखने की कोशिश करने लगा। लेकिन राधा जब आती तो गुलाब की महक से कमरा भर जाता, और खुशबू तो अब भी आ रही थी, और बहुत ही मशहूर कौन थी, लेकिन ये गुलाब की खुशबू ना थी। महाराज मुझे क्षमा कर दो। और कमरे में बसंती की मधुर आवाज़ आई। बसंती, और बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, हाँ महाराज, मैं अभागन बसंती ही हूँ। और उसकी मगमूम आवाज़ आई, मुझे क्षमा कर दो कि मैंने घूर पाप किया है, और परंतु मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हो गई थी, और तुम हो ही इतने सुंदर कि कोई भी नारी तुम्हें देखकर कुछ भी कर सकती है। और अचानक कमरे में दूधिया रोशनी फैल गई, जैसे चांद निकल आया हो, और वाकई कमरे में चांद निकल आया था। बसंती मेरी चारपाई के बिल्कुल पास खड़ी थी, और उसके वजूद से उठती हुई महक मेरे मशाम जान को मुअत्तर किए दे रही थी। और गहरे नीले रंगले मुक्त सिर घाघरे चोली में उसका जिस्म क़यामत ढा रहा था, और प्यार से मेरे कंधों पर हाथ रखकर उसने मुझे लिटा दिया। वो मेरे ऊपर झुक आई, और उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे को छूने लगी, और मैं होशो हवास खो बैठा, और हिद्दत से उसका पिंडा तनूर बना हुआ था। आज की रेना मुझसे इतना प्रेम करोगी कि मेरी बेअक्ल आत्मा शांत हो जाएगी। और उसकी खुमार आलूद सरगोशी उभरी, और जिस समय मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मेरे मन में मेरे बस में नहीं रहा था, और तुम तो देवताओं से भी ज़्यादा सुंदर हो, और मैंने आज तक तुम्हारे जैसा सुंदर मनुष्य नहीं देखा। और वो मेरे ऊपर छा गई। घने स्याह बालों ने मुझे ढक दिया, और मैं ये भी भूल गया कि इस वक्त हालात के कमरे में सज़ा का मुंतज़िर हूँ, और कल मेरे साथ क्या होगा मैं ये नहीं जानता था। और बसंती के कुर्ब ने जैसे दुनिया से बेगाना कर दिया।
प्रेम और मेरे अंदर जज्ब होने लगी और उसकी खुद सपुर्दगी देखकर मैं भी ज्यादा देर बेहिस न रह सका और खुद ब खुद मेरे हाथ हरकत में आ गए। उसकी नरमो नादक उंगलियां मेरे बालों में उलझ गईं और माथे पर हाथ लगा तो जख्म में दर्द के बाद मेरे मुंह से सिसकारी से निकल गई। और क्या हुआ मेरे मित्र, और मुझसे प्रेम करो ना। और उसकी चैन आवाज आई, तुम्हारा हाथ लगने से जख्म में दर्द शुरू हो गया है और मेरा सारा जिस्म जख्मों से चूर है, और इस हालत में मैं तुम्हें कैसे तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। और मैंने कराहते हुए कहा, प्रीतम, अभी तुम्हारे सारे दुख सुख बदल देती हूँ, और यदि तुम आज्ञा दो तो मैं इसी समय इन पापियों के घर भस्म कर दूं जिन्होंने तुम पर अन्याय किया है। और उसके लहजे में अपनायत थी, और शायद वो मेरे जख्मों को ठीक करना चाहती थी कि मुझे इंस्पेक्टर की बात याद आ गई। उसने कहा था कि वो इसी हालत में मुझे जज साहब के सामने पेश करना चाहता है, और ये मेरे हक में बेहतर था। और जज की हमदर्दी मेरे साथ होती, और ये ख्याल आते ही मैंने बसंती को रोक दिया। ठीक है, पर तुम सब कुछ ऐसे ही रहोगे परंतु और तुम्हें दर्द नहीं होगा। और उसने कहकर मेरे जिस्म पर अपना कोमल हाथ फेरना शुरू कर दिया। आप यकीन करें कि उसके हाथ के मेरे जिस्म पर फिरना था कि यकदम दर्द से निजात मिल गई। बसंती, और मैं जानता हूं कि तुम उनके घरों को जलाकर राख कर सकती हो, लेकिन कालीदास चाहता है कि मैं बाइज्जत तौर पर बरी हो जाऊं। और अगर तुमने उनके घर जलाए तो हो सकता है कि मैं सारी जिंदगी जेल की सलाखों से न निकल सकूं। और मैंने वजाहत की, मुझे खतरा था कि यह जीनजादी कहीं उन सब के घरों को जलाकर राख न कर दे, और उसके लिए ऐसा करना कोई मुश्किल न था। परंतु पापियों ने तुम्हारे संग किया है उसका बदला तुम्हें मिलना ही चाहिए। और उसके लहजे में अपनायत थी, और लेकिन ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ है। और जिस वक्त तुम वो लोग मुझे मार रहे थे तो मैंने कई बार तुम्हें पुकारा था, लेकिन तुम ना आई। मैंने गिला किया। वो सब मैंने कालिदास की इच्छा के अनुसार किया था, और राधा को प्राप्त करना चाहता है। और उसने मुझे वचन दिया है कि यदि मैं उसके समय उसकी सहायता करूं तो वो राधा को अपने बस में कर लेगा, और फिर हम एक दूसरे से प्रेम करने में कोई रोक ना होगी। और वो मेरी बाहों में समा गई। और उस रात की कहानी भी अजीब है। हवालात के कमरे में उसी किस्म की रात शायद ही किसी ने बसर की हो। और ठीक है, मैं तो इस वक्त मजबूर था, लेकिन सच पूछे तो बसंती के वसाल के लिए मैं खुद भी बेचैन था। मजबूरी अपनी जगह, लेकिन उसमें मेरी नफसानी ख्वाहिश को भी दखल था। और सुबह जब वो जाने लगी तो बड़े प्यार से मुझे तसल्ली दी, चिंता न करना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके जाने के बाद लाइट खुद ब खुद ऑन हो गई। लेकिन अब मैं इन बातों का आदी हो चुका था और हैरान होना मैंने छोड़ दिया था। रोशनी में मैंने अपने जख्मों का जायजा लिया, और जिनसे खून निकलकर जम गया था, और जख्म वैसे ही थे, लेकिन दर्द या तकलीफ का नामो निशान न था। और ये भी एक अजीब तजर्बा था। थकन से मेरा बुरा हाल था, और बसंती जो कुछ मेरे लिए कर रही थी उसने पूरा मुआवजा वसूल किया था। और न जाने कब मेरी आंख लग गई और किसी ने झंझोड़ कर मुझे जगा दिया। और नींद भी कितनी मेहरबान शय है, और हर दुख तकलीफ ख्वाह वो जिस्मानी हो या जहनी उसे निजात दिला देती है। और मैं आंखें खोल कर देखा, सिपाही करमदीन मुझे आवाज़ें दे रहा था। भाई सच पूछ तो मैंने किसी को हवालात के कमरे में इतने आराम से और गहरी नींद सोते हुए नहीं देखा। और मुझे भी पुलिस में आए हुए 10 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है। और उसने हर से कहा, और दिन का उजाला हर तरफ फैला हुआ था। मैं नाश्ता लाता हूँ। और वह जाने लगा तो मैंने कहा कि मुझे रफ़ा हाजत के लिए जाना है। और कुछ देर वो सोचता रहा और फिर बोला, अच्छा आओ। और मैं उसके साथ बाहर निकल आया और मुझे लेकर एक तरफ चल पड़ा। एक कतार में बैतुल खुला बने हुए थे, और फटाफट फारग हो जाओ। उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया और मैं अंदर दाखिल हो गया। फारग होकर मैंने उससे कहा कि करमदीन एक और एहसान मेरे ऊपर कर दो। और वह सवाल की नज़रों से मेरी तरफ देखने लगा। मैं रोज़ाना गुस्ल करता हूँ और बरसों से आदत है, अगर मेहरबानी कर सको तो। उसने मशकूक नज़रों से मेरी तरफ देखा। तुम तो कहते थे कि मैंने कुछ नहीं किया, और फिर नहाने की जरूरत क्यों पड़ गई। और मैं शर्म से कट कर रह गया। मैंने बताया है ना कि मुझे रोज़ाना नहाने की आदत है। और मैंने झिझकते हुए कहा, अच्छा आओ, तुम भी क्या याद करोगे कि किस सखी से वास्ता पड़ा है। और फिर मेरी जेब पर नज़र डाली, और जेब में कुछ माल पानी भी है या खाली खोली हो। तुम तो जानते हो कि मुझे किस हालत में लोग थाने लाए थे। और मैं उसे बताने ही लगा था कि ये कपड़े भी मुझे थाने में ही मैसर आए थे, लेकिन फ़ौरन ही बात बदल दी। और मुझे मालूम था कि मुहर्रर ने छुप कर लिबास फराहम किया है, और वह जल्दी में था, इसलिए उसने मेरी बात पूछने पर तवज्जो न दी और मुझे एक तरफ ले चला।
उसी तरह कतार में हमाम बने हुए थे और बनियान और धोती पहने कई सिपाही जा बजा मसवाक कर रहे थे और कुछ एक दूसरे की बातों में मसरूफ थे। 4 गुसल खाने थे लेकिन खाली कोई भी ना था। वो करमदीन, एक सिपाही ने उसे आवाज़ दी। हाँ भाई अफसर, क्या बात है? वो इस फटल बंदे को किधर लिए फिर रहे हो? और उसकी पट्टी शट्टी नहीं कराई और ये तो बहुत जख्मी है, उसने मेरी तरफ देख कर पूछा। और करमदीन चौंक गया और जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वो साजी, साहब ने कहा था कि तुम्हें इसी हालत में जज साहब के सामने पेश करना है और अगर तुम नहा लोगे तो जख्म फिर से सारा खून तो साफ हो जाएगा ना। उसने मुझे समझाया। चलो चलो पेशी भुगतने के बाद नहा लेना घर जाकर। और ये कहकर वह जल्दी से वापस चल पड़ा। और सिपाही मुझे हैरत से देख रहे थे और जो लिबास मैंने पहना हुआ था शायद वो किसी सिपाही का था। सफ़ेद रंग का कुर्ता शलवार जो मेरे जख्मों से निकलने वाले खून से सुर्ख हो रहा था और मैं तेज तेज चल रहा था। हालांकि जितने जख्म मेरे जिस्म पर लगे थे उनकी मौजूदगी में हिलना जुलना भी मुश्किल था और यही बात उनके लिए बासे हैरत थी। लेकिन वो तो नहीं जानते थे कि यह करिश्मा बसंती का है और वे मुझे बड़ा जीदार समझ रहे थे और जो इस कदर जख्मी होकर भी बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में चल फिर रहा था। जब हम वापस हवालात के कमरे में पहुंचे तो चारपाई और बिस्तर गायब थे और करमदीन मुझे छोड़कर चला गया। इस बार उसने बाहर से ताला लगा दिया और मुझे बैठे भी थोड़ी देर हुई थी कि बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी। आने वाले कई थे और करमदीन दरवाज़ा खोल कर एक तरफ हट गया। सबसे पहले वही इंस्पेक्टर अंदर दाखिल हुआ जिसने मुझे रात खाना, चारपाई और बिस्तर फराम किया था और अपना नाम आदल बताया था। उसके पीछे डीएसपी और उसकी नज़रें बर्छी की तरह मेरे जिस्म के आर पार हो रही थी और शक्ल ही से वह तंद खू और गोसीला लगता था। सर, बहुत बुरी तरह इन लोगों ने इसे मारा है। और इंस्पेक्टर ने बेदबे लहजे में कहा। और अगर मेरे बस में होता तो मैं इसे जान से मार देता और ये सज़ा तो इसके लिए कुछ भी नहीं। और आज मुझे इसका रिमांड लेने दो और फिर देखना कि मैं इसका क्या हशर करता हूँ। और वह जहरीले लहजे में बोला, सर इसके बगौल ये सब शरारत रिटायर्ड डीएसपी उमर हयात की है और रात मेरी प्रोफेसर साहब के साथ भी बात हुई थी। उन्होंने बड़े वसूख से कहा है कि वो उसे बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और ये इस किस्म का इंसान नहीं और 5 वक्त का नमाजी और नेक आदमी है। इंस्पेक्टर भरपूर तरीके से मेरा दिफा कर रहा था और ना जाने ये सब कुछ वो अपनी फितरत के बहस कर रहा था या उसमें कालीदास की पुरअसरार कवितों को दखल था। प्रोफेसर साहब आज अदालत में भी आएंगे, इंस्पेक्टर ने बताया। तुम्हारी तकरीर खत्म हो गई है या अभी बाकी है? और डीएसपी की सर्द आवाज़ कमरे में गूंजी और इंस्पेक्टर का चेहरा सुर्ख हो गया। सर, मैं तो आपको रिपोर्ट पेश कर रहा था कि अब तक मैंने क्या मालूम किया है। और वह जुज़बुज़ होकर बोला, इसकी मरहम पट्टी वगैरह क्यों नहीं कराएगी? और डीएसपी ने मुझे घूरते हुए इंस्पेक्टर से सवाल किया। सर, आपने खुद ही तो कहा था कि इसके करीब भी कोई ना फटके। और गधे हो तुम सब। उसने कहर भरी नज़रों से मुझ पर डाली और तेज तेज कदमों से बाहर निकल गया। उसके बाद जाने के बाद करमदीन ने दरवाजे को ताला लगा दिया और मैं दोबारा फर्श पर बैठ गया। क्यों चिंता करता है? और अचानक मेरे पीछे कालीदास की आवाज़ आई और मैं बुरी तरह उछल पड़ा और मुड़कर देखा वो बड़े इत्मीनान से दीवार से टेक लगाए बैठा था और उसके होंठों पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी। और डीएसपी बहुत गुस्से में है, मैंने आहिस्ता से कहा। और ये हरामी क्या आशा है? इसको तो इसके बड़े भी तेरी सेवा करेंगे। और कालीदास ने ठोस लहजे में कहा और फिर एक तरफ मुँह करके आवाज़ दी, बसंती। जी महाराज। और फौरन बसंती की मधुर आवाज़ कमरे में गूंजी और वह नजरों से उज्जल थी। सहारा पर बंद हो गया और कालीदास ने नरम लहजे में पूछा, हाँ महाराज, तुम्हारी इच्छा के अनुसार समय आने पर सब वहां पहुंच जाएंगे, बसंती ने जवाब दिया। और अदालत में तूने वही कुछ कहना है जो कल थानेदार कह चुका है। और कालीदास ने मुझे मुखातब किया, और क्या तुम अदालत में मौजूद रहोगे? सब तेरी इच्छा के अनुसार होगा और नश्यंत रह। उसने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय मुझे तसल्ली दी और उसके बाद वह नज़रों से उज्जल हो गया। और काश मैं भी कालीदास की तरह पुरअसरार कवितों का बाहर होता। और मेरे दिल में ख्वाहिश जागी, खान भाई। और मैं अपने सोचे में गुम था कि इमरान की आवाज़ आई और मैं चौंक कर देखा। इमरान सलाखें पकड़े खड़ा था और उसके चेहरे से अफसरदगी ज़ाहिर हो रही थी और मैं जल्दी से उठकर उसे पास चला आया। प्रोफेसर साहब ने एक बहुत काबिल वकील का बंदोबस्त किया है, आप फिक्र न करें और इंशाअल्लाह ताला आपके बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, वो आहिस्ता से बोला। और इमरान, और मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? और तुमने दोस्त होने का हक अदा कर दिया। और मेरी आवाज़ भर्रा गई। इमरान को देखकर मुझे साइमा और बच्चे याद आ गए थे और उसकी आंखों में भी आंसू थे।
खान भाई फिक्र न करें और इंशाल्लाह फतेह हमारी होगी। और मैंने उसे भी वही कहानी सुना दी जो इंस्पेक्टर को कालिदास के कहने पर सुनाई थी, और वह हैरत से मुंह खोले सुनता रहा। लोग दुनियावी मफाद के लिए इतना भी गिर सकते हैं और मुझे गुमान तक न था। खैर कोई बात नहीं, और दुश्मनों को शिकस्त और हमें फतेह नसीब होगी इंशाल्लाह। और दुख इस बात का है कि आपने मुझे हर बात से बेखबर रखा। अगर इस हरामजादे ने आपको धमकी दी थी तो आप मुझे बताते। और उसने मुझे यकीन दिलाने के बाद गिला किया और फिर कहने लगा कि वकील साहब बहुत काबिल हैं और हो सकता है कि पहली पेशी पर जमानत ना हो सके, लेकिन आप फिक्र ना करें, हम सब आपके साथ हैं। उसने मुझे तसल्ली दी। ऐसी बात नहीं है इमरान, मैं बेकसूर हूँ और मुझे यकीन है कि जज साहब को जब असल हालात का इल्म होगा तो वो मुझे बाइज्जत बरी कर देंगे। मैंने यकीन से कहा, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। अच्छा मैं चलता हूँ। और बड़ी मुश्किल से मुहर्रर की जेब गर्म करके मैंने मुलाकात का वक्त लिया है और अदालत में मुलाकात होगी। और उसके जाने के थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर आदल करमदीन के साथ आया और मुझे अदालत ले जाने का वक्त आ गया था। जी तो नहीं चाहता कि मैं तुझे हथकड़ी पहनाऊं, लेकिन मजबूरी है और डीएसपी साथ जाएगा। और उसने माजरत की और मैंने उसकी हमदर्दी पर उसका शुक्रिया अदा किया और करमदीन ने मेरे हाथों में आहनी जेवर पहना दिया। बाहर लाकर मुझे बंद गाड़ी में बिठा दिया गया और गाड़ी थाने के हदूद से निकलकर मेरी जानी पहचानी सड़कों पर दौड़ने लगी। गाड़ी की बॉडी में जालियां लगी हुई थीं और मैं यूं ही बाहर झांकने लगा और मेरे साथ 4 सिपाही थे। और 15 मिनट के सफ़र के बाद हम अदालत पहुंच गए। और जैसे ही गाड़ी अदालत के हाथे में दाखिल हुई और मेरी आंखें हैरत से फट गईं। लोगों का एक जमे गफीर अदालत में मौजूद था और उनके हाथों में प्ले कार्ड थे जिन पर मेरे खिलाफ मुख्तलिफ इबारतें दर्ज थीं। और उसके अलावा लोग नारे लगा रहे थे और औरतों की तादाद ज़्यादा थी और वो चीख चीख कर मेरे खिलाफ नारे लगा रहे थे, इज्जतों के लटेरे को फांसी दो और ऐसे दरिंदों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं, वगैरह वगैरह। गाड़ी पर नजर पड़ते ही उनके नारों में तेजी आ गई। कई जोशीले तो पुलिस का घेरा तोड़कर गाड़ी पर हमला करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से उनको कंट्रोल कर रखा था। गाड़ी को बिल्कुल अदालत के कमरे के सामने ले जाया गया और जब मैं गाड़ी से उतरा तो एक बार फिर लोगों का जोश बढ़ गया। मेरे चेहरे को एक तौलिए से ढक दिया गया और ये काम इंस्पेक्टर ने किया था, और जिसकी वजह उसने ये बताई कि प्रेस फोटोग्राफर्स मेरी तस्वीर बनाना चाहते हैं। और कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ था। कालिदास के यकीन दिलाने के बावजूद मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उन पुरअसरार क़ुव्वतों के मालिक लोगों की मजबूरियाँ भी बाज़ औक़ात आड़े आ जाती हैं। और जैसा कि राधा किसी जाब की वजह से ना आ सकी थी और मेरे सीने से एक आह निकल गई, अगर वो होती तो नौबत यहाँ तक कभी ना पहुँचती। सारा मीडिया मुंह तकता रह गया और क्योंकि सहाफ़ियों को अंदर दाखिल होने नहीं दिया गया था, कटहरे में खड़ा करके मेरी हथकड़ी खोल दी गई और जज साहब अपनी कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा थे। सुबह थाने में प्रोफेसर साहब का भेजा हुआ वकील मुझसे वकालतनामे पर दस्तखत करवा गया था और वो जंगले के साथ खड़ा था। और जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी और उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और इशारे से मुझे हौसला दिया। उसके साथ डिस्कस करने का मौका मुझे नहीं दिया गया और इस काम में रुकावट डीएसपी ने डाली थी, जो सबीन के वालिद साहब का शागिर्द था और सबीन को अपनी बहनों की तरह चाहता था। और वो भी एक तरफ खड़ा था और इंस्पेक्टर आदल की मौजूदगी से मुझे कुछ हौसला था और मेरी नज़रें चारों तरफ कालिदास को तलाश कर रही थी। उसने कहा था कि वो बर वक़्त अदालत पहुंच जाएगा और अगर वो ना आ सका तो, और मेरे दिल में यह खदशा बहरहाल मौजूद था और कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे देगा। और मुख्तलिफ किस्म के वसवसे मेरे दिल में चकरा रहे थे और कमरे में लोगों की दबी दबी सरगोशियाँ गूंज रही थीं और जज साहब ने हथौड़ा मेज़ पर मारा, ऑर्डर ऑर्डर, और मुकदमे की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। एक पुख्ता उम्र वकील उठकर जज के आगे झुका और अपना तारफ़ सबीन के वकील की हैसियत से करवाते हुए इजाज़त चाही। और कालिदास अभी तक नहीं पहुंचा था और उसने मुझे कुछ खास हदायत नहीं की थी कि मुझे अदालत में क्या बयान देना है, और इससे पहले ज़िंदगी में इस किस्म के हालात का सामना ना हुआ था और मुझे कुछ मालूम ना था कि क्या कहना है। बस ले दे के वही एक कहानी थी जो मैंने इंस्पेक्टर को आदल को सुनाई थी और जज ने एक सरसरी नज़र मेरे ऊपर डाली और फिर चौंक गया और बगौर मेरी तरफ देखते हुए पूछा, इसे किसने इस बुरी तरह मारा है? और मेरा वकील फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया, जनाबे अली,
आप देख रहे हैं कि किस बुरी तरह से मेरी मुवक्किल को ज़ोदकोब किया गया और अभी तो इसका जुर्म साबित नहीं हुआ और उसके बावजूद उसे इस किस बुरी तरह का तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और योर ऑनर, दरिंदगी की इंतहा है कि मेरे मुवक्किल को अधमुआ करके थाने ले जाकर बंद कर दिया गया। और मेरे वकील ने बड़े मजबूत लहजे में कहा, इसका ये हाल किसने किया है? और जज ने डीएसपी की तरफ देखकर सवाल किया। योर ऑनर, और जिस दरिंदगी का मुजाहरा इस शख्स ने किया है और जिस तरह इसने एक मासूम कंवारी लड़की की इज्जत लूट कर उसे तबाह बर्बाद कर दिया, और इसके मुकाबले में तो इसे कुछ भी नहीं कहा गया। और अगर मेरे इख्तियार में होता तो इस दरिंदे की मौत की सज़ा देता। और उसके लहजे में मेरे लिए जहर भरा हुआ था। और उसकी बात सुनकर जज के माथे पर बल पड़ गए और वह सख्त नज़रों से उसे घूरता हुआ बोला, और मेरा ख्याल है कि मैं ये कुर्सी छोड़कर तुझे उस पर आपको बिठा दूं, क्योंकि आपके अंदर मुझसे बेहतर फैसला करने की सलाहियत मौजूद है। और क्या कानूनन आपको इस बात की इजाज़त देता है कि जुर्म साबित हुए बगैर किसी भी शख्स को इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया जाए? और क्या आपको वर्दी इसलिए दी गई है कि इंसानों की हिफाजत करने की बजाय उन्हें मौत के मुंह में पहुंचा दे? और आहिस्ता आहिस्ता जज का लहजा तेज होता गया। मेरा ख्याल तो यह है कि आप इस ओहदे के लायक नहीं हैं। क्यों ना आपको मुअत्तल कर दिया जाए या आपकी तरक्की माकूस करके आपको दोबारा थानेदार बना दिया जाए। और डीएसपी के अल्फाज ने जज को चिराग पा कर दिया था। जनाब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और दरअसल जिस लड़की पर इस दरिंदे ने जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं वो मेरी मुंह बोली बहन है, और वो अपनी चौकड़ी भूल गया। और जिस वक्त मुल्ज़म उस लड़की की इज्जत रख कर रहा था, आप वहाँ मौजूद थे। और क्या आपने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया है? और जज ने सख्त लहजे में पूछा। नहीं जनाब, लेकिन मेरा तजर्बा कहता है कि ये वाकई मुजरिम है, और वो बुरी तरह बदहवास हो गया था। अगर आपका तजर्बा इतना वसी है तो आप वाकई मेरी सीट के हकदार हैं। और जज के तंजिया लहजे से उसका चेहरा खिफत से सुर्ख हो गया। आइंदा ख्याल रहे कि ये अदालत है और इस किस्म के अल्फाज बोलने से परहेज करें। और दरिंदे की असतला आपने मुल्ज़म के लिए क्यों इस्तेमाल की, जबकि आपने उसे दरिंदगी का मुजाहरा करते हुए नहीं देखा? और जज ने उसे एक बार फिर लताड़ा। और कैसे कैसे नकम्मे और जाहल लोग पुलिस में भर्ती होकर आ जाते हैं। और उसकी वाज़ह बड़बड़ाहट सुनाई दी। और डीएसपी पीछू तब खा रहा था, लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ ना कर सकता था। ये अदालत थी और थाना नहीं। 1 मिनट में उसकी वर्दी उतर सकती थी। और अचानक जज के पीछे कालीदास नमूदार हुआ, और उसे देखकर मैंने इत्मीनान की सांस ली। ज़ाहिर है कि वो लोगों की नज़रों से उज्जल था, वरना उसे वहाँ कौन ठहरने देता। वो जज की कुर्सी के पीछे बिल्कुल खामोश खड़ा था, और हस्मे मामूल उसने एक धोती लंगोट की सूरत में बांध रखी थी। सामने वाली कुर्सियों की कतार में डीएसपी उमर हयात, साजिद और मेरे देगर महल्लेदार बैठे थे। और मेरे वकील ने जज से गवाहों से सवाल पूछने की इजाज़त चाही, और जज ने सर हिलाकर इजाज़त दे दी। सबसे पहले उसने मेरे पहले करीबी हमसाये को कटहरे में बुलाया, और उसने सच बोलने का हलफ उठाया। और इतना अरसा गुजरने के बाद मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, और गालिबन मेरे वकील का नाम अमजद सिद्दीकी था, और वो एक मुअम्मर और तजर्बाकार वकील था। उसने गौर से मेरे हमसाये को देखा। आपका नाम? उसकी भारी आवाज़ कमरे अदालत में गूंजी, और जहां सकूतो मर्द तारी था। मोहम्मद असलम। और क्या काम करते हैं? और मेरा मतलब है कि आपका जरिया मुआश क्या है? वकील ने दूसरा सवाल किया। मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ। और अदालत को मुख्तसर अल्फाज में बताइए कि आपने मेरे मुवक्किल फारूक खान को किस हालत में देखा और जब आप वहाँ पहुँचे। और साथ में ये भी वाज़ा कीजिए कि आपको किस तरह मालूम हुआ कि मेरा मुवक्किल इस वक्त किसी लड़की की इज्जत लूट रहा है। और कालीदास ने असलम की तरफ मुंह करके फूंक मारी। जनाब, मैंने सच बोलने की कसम खाई है, इसलिए मजीद झूठ नहीं बोल सकता। और असलम की बात ने सबको चौंका दिया। मैंने कुछ नहीं देखा, और मुझे तो उमर हयात साहब ने कहा था कि फारूक एक लड़की की इज्जत लूट रहा था कि हमने उसे मौका पर पकड़ लिया। तुमने कल अदालत में गवाही देना है कि तुमने ऐसा होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा था। जनाब, मैंने तो अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, और फिर मैं कैसे कह सकता हूँ? और उस पर उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम लगाकर तुम्हें थाने बंद करवा दूंगा। और मेरी बड़ी पहुँच है, इलाके का एसपी मेरा दोस्त है। और जनाब, मैं सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ, इन उलझनों में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन चौंका हमारे माशरे में पुलिस के इख्तियारात को सभी जानते हैं, इसलिए मैं चला आया।
لیکن جب یہاں آ کر میں نے قسم کھائی تو میرے ضمیر نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں جھوٹ بولوں، اور اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ اور کیا بکواس کر رہا ہے اسلم؟ اور جب ہم فاروق کے بیڈ روم میں داخل ہوئے تو کیا تم میرے ساتھ موجود نہ تھے؟ اور عمر حیات حلق کے بل چیخا، اور اسے گمان ہی نہ تھا کہ اسلم اس طرح جھوٹ بولے گا۔ آرڈر آرڈر! اور مسٹر، اس بات کو دھیان میں رکھو کہ یہ کمرہ عدالت ہے، اور اگر اب تم نے اخلاق سے گری ہوئی کوئی بات کہی تو میں تمہیں توہین عدالت کے جرم میں سزا دوں گا۔ اور جج نے برہمی سے کہا، سر یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، اور اس نے خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتے دیکھا تھا، اور اس کے علاوہ یہ سب لوگ۔ اس نے اپنے دائیں بائیں بیٹھے افراد کی طرف اشارہ کیا، اور یہ بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ اس نے احتجاج جاری رکھا، ان کی باری آنے پر ان سے بھی پوچھا جائے گا، فی الحال آپ خاموش رہیں۔ اور جج نے اس کو جھڑک دیا۔ لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے ہوئے تھے، حتیٰ کہ میرے وکیل کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی، اور گواہ منحرف ہونا اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ لیکن جس اطمینان سے اسلم نے عمر حیات کی بات کو جھٹلایا تھا وہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا جناب علی، اور میرے وکیل نے سر کو خم کر کے کہا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ آپ گواہ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ اور جج نے سبین کے وکیل سے پوچھا۔ نہیں جناب، اور اس کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ جج صاحب نے میرے وکیل کو باقی گواہ پان پر جرا کرنے کی اجازت دے دی، اور وہ باری باری گواہان کو بلاتا گیا، اور سب نے ہی ایک جیسا بیان دیا کہ ڈی ایس پی نے دھمکایا تھا کہ اس کے کہنے پر گواہی نہ دو گے تو تم لوگوں کو تھانے میں بند کروا دوں گا۔ اور عمر حیات کی حالت دیدنی تھی، حیرت، غصے اور بے چارگی کی تصویر بنا ہوا وہ سیٹ پر پہرو بدل رہا تھا۔ وکیل مخالف نے اپنی فیس حلال کرنے کی خاطر کچھ گواہان سے سوالات کیے، بلکہ بحث بھی کی، لیکن کسی بھی طرح انہیں اپنے پہلے بیان سے نہ ہٹا سکا، اور جج کی ہمدردی میری حالت دیکھ کر ہی مجھ سے ہو گئی تھی۔ اور اس پر جب گواہان بھی مکر گئے تو اس نے خشمگین نظروں سے دونوں آن ڈیوٹی اور ریٹائرڈ ڈی ایس پی کو دیکھا، اور سب سے آخر میں میرے وکیل نے سبین کو کہٹہرے میں بلانے کی اجازت چاہی، اور جس پر جج صاحب نے سبین کے وکیل کی طرف دیکھا اور اس نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ سبین کو بلایا گیا، اور جب وہ کٹہرے میں آئی تو اس کا چہرہ تر و تازہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا، اور کسی طور وہ ایسی لڑکی نہ دکھائی دی کہ جس کے ساتھ ایک روز قبل ایسا اندوناک سانحہ گزرا ہو، اور یہ بھی کالی داس کی جادوئی قوت کا کرشمہ تھا۔ جج صاحب کی آنکھوں میں حیرت تھی، اور کٹہرے میں آنے کے بعد میرا وکیل اس کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ کا نام؟ جی میرا نام سبین امجد ہے، اور امجد میرے والد ہیں، اس نے واضح کیا۔ اور کٹہرے میں کھڑے صاحب کو آپ جانتی ہیں؟ اور وکیل نے میری طرف اشارہ کیا۔ جی ہاں جناب، یہ فاروق صاحب ہیں میرے باس، اور اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اور جج بڑی گہروں سے نظروں سے سبین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا آپ عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ کل آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ اور وکیل نے اس کے چہرے پر نظریں جما کر سوال کیا۔ ڈی ایس پی جمال قریشی اور میرے منہ بولے بھائی ہیں، اور میرے ابو کے شاگرد بھی، اور ان کا ہمارے گھر میں آنا جانا ہے، اور 3-4 دن پہلے شام کے وقت آئے اور کہنے لگے کہ مجھے شاپنگ کرنا ہے اور میرے ساتھ بازار چلو۔ اور اس نے ایک نظر جمال قریشی پر ڈالی جو الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر سلسلہ کلام جوڑا۔ میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر بازار چلی گئی، اور انہوں نے کچھ شاپنگ اپنے لیے کی اور 1-2 چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے لے کر رکھ دیں، اور اس کے بعد ہم ایک ہوٹل میں کھانا کھانے چلے گئے، اور کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا ریٹائرڈ ڈی ایس پی عمر حیات ایک بنگلہ خریدنا چاہتا ہے، لیکن اس میں تمہارے باز فاروق خان رہائش پذیر ہیں، اور ہم نے ان سے کئی بار درخواست کی ہے کہ اگر آپ کوئی دوسرا مکان تلاش کر لیں تو پروفیسر صاحب یہ بنگلہ ہمیں فروخت کرنے پر تیار ہیں، لیکن وہ نہیں مانتے، اور اگر تم ہماری مدد کرو تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور میں نے کہا بھائی اس سلسلے میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتی ہوں؟ اور اس پر یہ کہنے لگے اگر تم ان سے کہو تو وہ ضرور مان جائیں گی۔ اور میں نے کہا کہ یہ مناسب بات نہیں، اور ابھی مجھے بینک آئے 2 روز ہوئے ہیں، اور پھر میں کیسے ان سے یہ بات کہہ سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے کہنے پر بھی وہ نہ مانے تو میں اپنے دوست کو سمجھا لوں گا۔ اور میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں کل ان سے بات کر لوں گی۔ اور کہنے لگے کل ہم ان کے گھر چلے جائیں گے اور وہاں بیٹھ کر اطمینان سے بات ہوگی۔ اور مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں نے زیادہ بحث نہ کی، اور کل دوپہر کے قریب انہوں نے مجھے فون کیا اور میں تھوڑی دیر کے لیے چھٹی لے کر آ جاؤں۔ اور جب میں گھر پہنچی تو یہ ابو کے پاس بیٹھے تھے، اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے چلو تمہارے افسر کے گھر چلیں۔ اور میں نے کہا لیکن وہ تو اس وقت ڈیوٹی پر ہیں،
اور کہنے لگے کہ تھوڑی دیر پہلے وہ گھر چلے گئے ہیں اور میں ان کے ساتھ چل پڑی، اور پہلے ہم ان کے سب کے گھر گئے اور سبھی نے عمر حیات کی طرف اشارہ کیا جو حیرت سے منہ کھولے سن رہا تھا۔ ان کے ساتھ جو صاحب بیٹھے ہیں یہ بھی وہاں موجود تھے، اور اس بار سبھی نے ساجد کی طرف اشارہ کیا اور مجھ سے کہنے لگے تم فاروق سے بات کرنا کہ وہ یہ بنگلہ خالی کر دے تاکہ ہم اسے خرید سکیں، اور مجھے ان کی بات کی سمجھ میں نہ آئی، لیکن جمال بھائی پر چونکا مجھے اندھا اعتماد تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی اور ہم سب فاروق صاحب کے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم جا کر بات کرو، اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں دیکھ کر وہ نہ مانے، اور اس نے ایک بار پھر عمر حیات کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں کی سروس میں نے سر فاروق کو اچھا اور سلجھا ہوا شخص پایا تھا اور اس لیے بے دھڑک اندر چلی گئی، اور اس کے علاوہ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس وقت میں گھر میں تنہا ہیں، اور سر فاروق نے مجھے حیرت سے دیکھا اور میں بھی انہیں بتانے ہی لگی تھی کہ میں کس مقصد کے تحت آئی ہوں کہ اچانک جمال بھائی اور یہ دونوں، اس نے عمر حیات اور ساجد کی طرف اشارہ کیا اور چند اور افراد کے ساتھ اندر آ گئے، اور آتے ہی انہوں نے سر فاروق کو مارنا شروع کر دیا، اور اس درندے نے اس نے ڈی ایس پی جمال قریشی کی طرف اشارہ کیا اور اس کی آواز بھر گئی، اور کمرہ عدالت میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور سبین کی سسکیاں تیز ہو گئیں، اور کچھ دیر بعد اس نے آنسو صاف کیے۔ جناب، اس درندے نے مجھے دوسرے کمرے میں لے جا کر میری عزت لوٹی، اور ایک بھائی نے بہن کی عزت کو تار تار کر دیا، اور ایک بار پھر اس کی آواز رند گئی، اور میں نے منتیں کی، واسطے دیے، لیکن یہ جانور بن چکا تھا، اور دونوں ڈی ایس پی کے ساتھ ساجد بھی حواس باختہ نظر آ رہا تھا، اور اتنا حیران وہ زندگی میں کبھی نہ ہوئے ہوں گے جتنا اس وقت نظر آ رہے تھے۔